اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 303 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ، ہرگز گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، بما، اس چیز میں جو آتاہم اللہ، اللہ نے انہیں عطا کیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، کہ ہوا کہ وہ خیر لہم، کہ وہ بخل ان کے لیے بہتر چیز ہے، بلکہ ہوا وہ بخل شر لہم، ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ سیطوقون، توق ڈال دیا جائے گا، ماں، اس چیز سے جو بخلوا بھی، اس چیز سے جس میں بخل انہوں نے کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی وراثت، واللہ، اللہ، بما تعملون، جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، خبیر، باخبر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جو لوگ اس مال میں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے بخل کرتے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں بلکہ ان کے لیے برا ہے۔ وہ جس مال میں بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس کا توق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا، اور آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو اس کا علم ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لینے کو کوئی اچھی بات ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جس مال میں دنیا میں بخل کیا گیا، وہی مال قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ سارے آسمان اور زمین کا حقیقی وارث تو بس اللہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو کچھ تم سب عمل اس دنیا میں کرتے ہو، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ ہمیں اس آیت کی روشنی میں اس بات کا سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو ہم اپنی زندگی میں بخل کرتے ہیں، بخل کیا چیز ہے؟ ایک ہے سخاوت، ایک ہے بخل۔ ہم لوگوں کے بارے میں تفسیریں کرتے ہیں، بڑا سخی آدمی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے۔ بڑا بخیل آدمی ہے، یعنی کنجوس ہے، بخیل ہے، جو خرچ کرنا چاہیے وہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ بخیل شریعت کی نگاہ میں وہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض کی گئی، زکوٰۃ بھی بہت معمولی ہے، معمولی سی مقدار ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تم آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آدھا تم، کتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے، کیا آدمی یہ کر سکتا تھا؟ چلو یہ 25% دے دو، وہ بھی نہیں، 10% نہیں، صرف 2.5% ہے صاحب نصاب کے لیے، صرف 2.5%۔ اتنا ہی مطالبہ ہے زکوٰۃ۔ اگر وہ 2.5% بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا، 100 میں سے
जो है 97%, 97.5 वो भी अपने लिए खर्च करता है, उसके बाद जो 2.5 है वो भी खुद अपने ऊपर खर्च कर लेता है, अल्लाह की राह में नहीं देता, तो उस शख्स को कहते हैं बखील है, बखील। इसी को शुह से ताबीर किया गया। शुह क्या है? ये भी बुखल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के दिल में 2 सिफतें जमा नहीं हो सकती, ईमान और बुखल, शुह, ये दोनों जमा नहीं हो सकती। जो वाकई मोमिन है वो बखील नहीं हो सकता, और जो बखील है वो मोमिन नहीं हो सकता। हकीकी ईमान जिसके दिल में होता है वो अल्लाह ने उसके ऊपर जो फर्ज किया है वो भी देता है, उससे बढ़कर भी देता है। सहाबा किराम की जिंदगी, नबी करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हम सबके सामने है। काना अजवदुन्नास, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सखी थे। रमजान का महीना आता था तो आपका हाथ खुल जाता था, खूब सखावत करते थे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है सखावत। बुखल जो लोग करते हैं, आदमी बखीरी करके ये समझता है पैसा जमा करके खूब रखता है, बैंक में रखता है, फना करता है, जायदाद बना के रखता है, अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, करोड़पति है, लखपति है, अरबपति है, लेकिन पैसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, जमा जमा करके रखता है और समझता है ये उसके लिए बहुत बेहतर चीज है। अल्लाह फरमा रहे हैं, वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही हुवा खैरुल लहुम, वो लोग जो अल्लाह ने जो कुछ उनको दिया है अपने फजल में से, उसमें से जो बुखल कर रहे हैं, वो जो बुखल है उसको वो अच्छी चीज न समझें, बल व शर्रुल लहुम, बल्कि वो बुखल उनके लिए बहुत बुरी चीज है। अंजाम के एतबार से, नतीजे के एतबार से वो बुखल उनके लिए बुरी चीज है। इसलिए कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है अल्लाह उसको और देते हैं। मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, जो हमारे पास 1 लेकर आता है 10 देते हैं। जो अल्लाह की राह में सखावत करता है मजीद अल्लाह उसको और देते हैं। जो जमा जमा करके रखता है वो जुमूद तारी हो जाता है उसके ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला उसको नहीं देता। दुनिया और आखिरत में बदला अगर मिलना है, खूब मिलना है, तो फिर अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करना है। बुखल अच्छी चीज नहीं है, वो बुरी चीज है। एक हकीकत तो ये बता दी गई। और फिर जो लोग इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज फर्ज की गई ज़कात है मसलन, और वो नहीं देता, उसमें बुखल करता है, तो याद रखना चाहिए कि सयुतव्वक़ून मा बखीलू बिही यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मुजरिम की सजा उसी अंदाज में देंगे कि जिस माल से उसने जो है का खजाना बना करके रखा और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया, तो वही माल क़ियामत के दिन लाया जाएगा और उसी को तपाकर उसके गले का तोक बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। आदमी ये समझता है कि ये माल मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, कारखाने मेरे हैं, गाड़ियां मेरी हैं, प्लॉट मेरा है, बिल्डिंगें मेरी हैं। मालिक बनकर, अरे कब तक जिएगा मालिक बनके? तेरी जिंदगी खत्म हो गई तो नाफरमान औलाद के हाथ में ये दौलत चली जाएगी, तेरे लिए ईसाले सवाब की बजाय ईसाले अजाब का जरिया बनेगा। समझने की चीज है। आदमी कहां मालिक है? मालिक, हकीकी मालिक तो अल्लाह है। जब क़ियामत कायम हो जाएगी तो कौन मालिक रहेगा? कोई सेठ नहीं रहेगा, कोई मालिक नहीं रहेगा। सब के सब मजबूर और बेबस खड़े होंगे क़ियामत के दिन। जमीन और आसमान और उसके अंदर रहने वाली सारी चीजों का हकीकी मालिक तो अल्लाह है, वही वारिस है। इसलिए अल्लाह ने जिंदगी में मौका दिया है तो इस माल को जमा करके मत रखो। ये बिल्डिंगें, ये दौलतें, ये बैंक बैलेंस कुछ काम आने वाला नहीं है। जो कुछ हो सकता है अपनी जिंदगी में अपनी आखिरत के लिए भेजो उसको तोशा बनाकर, वो तोशा ही आखिरत बनेगा। खुश होंगे उस वक्त में जब मौत आएगी, अल्लाह के रूबरू खड़े होंगे। जितना खर्च किया हुआ होगा उस पर खुश होगा, जितना छोड़ा होगा उस पर अफसोस करेगा। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। जो कुछ तुम इस दुनिया में काम कर रहे हो, अमल कर रहे हो, ये बुखल कर रहे हो, फिस्क व फुजूर कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, सब कुछ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह को इसका पूरा इल्म है, अल्लाह बाखबर है। अल्लाह तबारक व तआला हमें बुखल करने से बचाए, सखावत के साथ अपनी जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह